education system in India needs serious reforms. Let me write this topic in the chat box too. Now this is something as I told you, आपके पास कोई भी सिस्टम, आपके पास एजुकेशन के बारे में बहुत चीजें मैंने डिस्कस की है, बहुत ज्यादा पॉलिसीज I've already discussed it out. You have to tell about those, you have to talk about those, and apart from it you also have to mention certain pointers. What are the shortcomings right now? What are government schemes which are already planning for some reforms? What has been the reforms, or still what is the need of the hour? Everything should be discussed. Like education system in India needs serious reforms. Do you agree with it, or you think that yes, the education system is going well wisely? Vishal and Shilpa, are you there, guys? 3 minutes timer starts now. 4:40 by my side. At 4:43, we are going to start. Anyone who is up for the introduction on his own? Okay, I will. Okay, Rohit will go for Rohit Yadav will go for intro. Conclusion, who wants to go ahead? Okay. I think conclusion part can be doing it out. Okay, chalo. Just by Rohit Yadav the intro and part conclusion. Good, guys, note down your pointers. Okay, guys, 3 minutes time is up. I think we can start with the topic now. So, Rohit Yadav, you can go for the introduction, and after 15 minutes timer, there will be a message in the chat box, and you guys have to conclude, right? Okay, go ahead, Rohit. Okay. Good evening, guys, and I am very glad to start the GD. And the today's GD topic is education system in India needs to serious reform. So this topic is very relevant to this current scenario because there is a need to change some education system in India, because in India we should try to focus on the teach to student by innovation, by projector method, because in today's scenario the more the more innovative idea are creating, and digital system are also creating, and government has also focusing on to modernization the education system in India, because they have launched some skills that like new education policy and adult tinkering lab. All these things are very interesting and very innovative idea by the government of India to reform the education system in India. So I am opening the inviting all of you to participate in the topic education system in India needs to serious reform. Yes, definitely, Rohit. Recently, government ने काफी रिफॉर्म की है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को भी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, जो काफी हद तक करंट सीनेरियो मैच करता है. सो पर डेफिनेटली दैट इज नॉट सफिशिएंट. Lot of reform needed, like lack of funding is there, that should be increased, and special focus should be given to the primary education systems and the R&D, and the other dimensions should be increased in the schooling and the like college level, other cultural activities like in sports and other activities should be included, so the complete total enhancement in the student will happen. And also we need to focus the internationally going technology are all over world. What technology is going, we should focus on our students, that they can get the exposure of that knowledge at that level knowledge they can, so they can Yes, come. I agree with you, and government is also taking some idea and in the field of research and development. Government बहुत सारी स्कीम्स भी लॉन्च कर रही है तो स्टूडेंट को अट्रैक्ट करने के लिए कि वो रिसर्च के एरिया में जाएं, जैसे कि स्टाइपेंड गवर्नमेंट देना शुरू करती है एमटेक के स्टूडेंट को. इफ एनी स्टूडेंट टेक एडमिशन इन एमटेक, तो गवर्नमेंट
is providing some stipend to the student to attract the student to doing research in that area, and PhD स्टूडेंट्स को भी फेलोशिप प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड अट्रैक्टिव आइडिया एंड स्कीम है गवर्नमेंट के द्वारा, कि बच्चों को रिसर्च के एरिया में और बहुत सारे इनोवेटिव आइडिया रिसर्च करने के लिए प्रोत्साहित करें. Only not only Rohit, like definitely government is doing a lot of work, but government government has to focus not only on the primary education or the education, secondary education, college education, but for the complete development, like for the person who wants to learn at the age of 30, 35, who is like left their like who is not studying, like left their college 4 year ago, 5 year ago. For them also we need a few different types of curriculums, like the facilities of night schools. We need night schools, like and now since we have seen like online education was growing a lot, so we need like we need more and more government education government online education programs for them who left it there, who wants to continue their studies but left it few years back because of any situation or any reasons. They can carry on their education and grow in their field as well. Yes, Deepen, Yes, I agree Deepen, with you, and I would I also like to agree add with one you. more point is that the problem is the language barrier. फॉर एग्जाम्पल जो लैंग्वेज बैरियर की प्रॉब्लम है उसके लिए वो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है काफी साउथ इंडियन स्टेट्स और नॉर्थ इंडियन स्टेट्स के लिए. उसके लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में उसको हाईलाइट भी किया गया इस प्रॉब्लम की. और I don't think education like language is one of the barrier, because we have seen like English is we are standardizing English as a like a global language. So even I have seen like in the most of the places, No, Dipendra, I disagree with you, because language is a barrier. Because in most of the state, they prefer only their regional language. They do not go for the English and other language. but this is like a drawback for the students, because many of the research works are done for the research development are working on English field in foreign countries. So if we are only stick to the one language, how can we get there? No, expertise Dipendra, I there? disagree with you, Okay. because it is not about the research area. It also about the primary education. So in primary education, there is a language barrier, because there is a in our constitutional there is also a rule up to 5 class. Teachers should try to teach the student to in their regional language only in primary school, in government primary school. yes, Rohit, I agree with you. It's And I would not also like about to highlight about some other points also. There is also one problem with our education system, is that, for example, IITs and all the other engineering institutes also, there is very less industry-institute interactions. That needs to be improved. And the one thing is that when the students are getting their engineering BTech, they must be offered some kind of internship. And government has taken some of the steps. For example, AICTE has started from last 4 years. AICTE started giving internships to the student. Since we have in IITs and NITs, we have the provision of internships, 1 month internship, 6 month internship. All the PSUs like NTPCs, BPCL, all they provide internships. So we have a credit-based subjects for the internship. So in the NITs and IITs, and I think in all of the engineering courses, we have the provision of internship. We have to compulsory do the internship. Lastly, like I am also a 4th year student in BTech. I've done my internship like this month from BSP, Reliance Plant Sales BSP. So it is there in the curriculum of any BTech. Yes. Yes, Dipendra, and I also want to add one more point, that is Government of India has also started the scheme, that is SWAYAM program. SWAYAM program, that is through the NPTEL. So they launched every course for I think from 8th to higher education, and also up to the PhD level. They provide all online lecture to the student, whoever is present in village. They can also access by the internet. If internet was good, so they can. You are very correct, but we should see on the other areas, like in art or in other, like apprentice should be focused in all areas. Like not only we can focus on technical, other just subjects are also important. No, Rohit. SWAYAM program provide to all area, even arts and commerce students also they get teach by the online on the SWAYAM portal. I think much misinterpreted it.
he was saying like not only the education, we have to focus on all of the development, curriculum development, sports development, all the career-based development. So we have to include, and government is taking in the part like in the one thing, one internship entrepreneurship was going on in the youths of India. So I have seen like many of our colleges have e-cells, entrepreneurship cells, which provide the which provide the funding if you have any idea to grow their business. So this kind of things should be promoted by the government. Not only not Yes. only we have to make Yes, Dipen, I agree with you, Uh, and I would also like to add one more dimension to it. One of the problem is that the problem is with the school children and the students who are preparing for some competitive exams. For example, जो बच्चे नीट और जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो फॉर एग्जांपल गेट की जैसे हम लोग प्रिपरेशन करके आए हैं, तो उसमें एग्जांपल में हमें कोचिंग के पास जाना पड़ा, तो स्कूल भी जा रहे हैं वो बच्चे, कोचिंग भी जा रहे हैं, तो कोचिंग माफिया की जो प्रॉब्लम्स है वो भी एजुकेशन में रिफॉर्म चाहिए, और उसके लिए गवर्नमेंट ने और भी जो स्टेप्स लिए हैं, एक है IIT PAL का जो रिफॉर्म किया था गवर्नमेंट ने आज से 10 ईयर्स अगो, एक दो, और जैसे कि रोहित ने भी हाईलाइट किया NPTEL और स्वयं, इस तरह के और भी रिफॉर्म्स चाहिए। यस पार्थ, और मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि अगर सभी हमारे कोर्सेज में जो भी एवरी क्लास, इवन आई से अबाउट क्लास above 8 इवन above क्लास 6 एक्टिविटी आर देयर इन देयर बुक। एक्टिविटी जो है स्टूडेंट के बुक में है, लेकिन उसे परफॉर्म कराने के लिए रिसोर्सेज की कमी है बहुत सारे स्कूलों में, लाइक इन प्राइवेट, इवन इन गवर्नमेंट स्कूल आल्सो। सो एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए गवर्नमेंट को चाहिए फंड ज्यादा से ज्यादा रेज करे, और जो भी रिक्वायरमेंट हो एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए उसे प्रोवाइड कराए। Even many schools don't have counseling process as well. Like we don't have counselors because nowadays students goes from very students get from depression, anxiety like things. So we need that every school or college have a counselors so that it can improve their mental health as well, because mental health is becoming one of the crucial things nowadays. Yes, Deepan, I agree with you, and I would also like to add one more type of counseling, that is the career guidance type of counseling should also be there in the schools. Mental health of the students should be focused, and apart from this, I will say like we have to focus on the inclusion of the student at the village level. Many village level talented students are not able to get the good quality education. So at the far distances, we should focus that education should be provided, and the attendance should be seen of those students as, and also the girls. We especially focus on the girls, that when they go to the higher education, they are dropping after some education. So that should be that should be focused by the government, that they should not drop, they go for higher education as the we have to figure out the problem first of all for that, like why girls are dropping their higher education, and government has to be दीपेंद्र। और जो हम मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं टीचिंग में। इवन वी सी अबाउट द लोअर क्लास, like third class, fourth class, up to fifth class, students are not getting more involved in their study. So government should try to provide more interesting activity, because through activity, if government tries to teach the student up to class 5 through activity, so I think it will be more beneficial to that student, because they will get attracted towards the activity, and they will get try to study. So that's why I think it needs to be done by the government. Okay, Parth, go ahead with the conclusion. Time is up. Yes, ma'am. Okay, friends, now I take the opportunity to conclude this group discussion. Friends, we had a good discussion, and I think we could reach the consensus. Though we all believe that there is a need to reform, and as we have discussed that, कुछ लोगों का व्यू था कि जैसे कि अभी हमें और भी रिफॉर्म्स चाहिए हैं, और जैसे रोहित का व्यू था कि हमारे पास ऑलरेडी रिफॉर्म्स हैं, जैसे स्वयं NPTEL और IIT PAL जैसे, लेकिन हमें और भी रिफॉर्म चाहिए। जैसे दीपेंद्र ने हाईलाइट किया कि हमें कंटिन्यूअस एजुकेशन के लिए, जो सीनियर सिटीजन के एजुकेशन के लिए, और नाइट स्कूल की फैसिलिटी होनी चाहिए।
मेरा पर्सनल ओपिनियन था कि हमारे पास पहले ऑलरेडी रिफॉर्म्स हुए हैं, लेकिन हमें और भी फर्दर रिफॉर्म्स चाहिए, जैसे कि जो कि डिजिटाइजेशन और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हेल्प करे, जो कि रोहित का भी व्यू था। थैंक यू। Good one, guys. Now there were three people who were not able to participate at all, I would say it out, right? Reena, Shilpa, and Shivam. Why you guys did not participate? Ma'am, Sorry I for had some points I wanted to share, but every time I was trying to say, someone was cutting me, so I was not able Also, to your mic share. was muted. Even when you're trying to speak, we could not hear you out. Right now, you just unmuted your mic. First thing. Yeah, I muted after no one was giving, matlab, only 3-4 people were talking, and so That I is was something you don't do participation every day, and they are doing the participation since every other day. So obviously they have the things how to tackle in a GD. That is very much important. I'm saying all of you try to be regular in the GDs if you really want to crack it out, because at that time it is about how you enter, how many times you speak, what is your participation level, how much jargons do you use it out right now. So it is like आज के content में दीपेंद्र का कंटेंट अच्छा नहीं था. There were many mistakes, Dipendra, you were committing. Wrong content, you know. You were giving wrong content. Content-wise and part, I would say it out. Rohit Yadav, he had a good content. Though his delivery is not that good, but content was good. Even Parth, both were doing good things, good way of speaking it out. And Dipendra completely on the opposite side. बहुत चीजें गलत मेंशन क्योंकि आपको नई स्कीम्स के बारे में पता नहीं था, तो आपने सारी चीजें गलत मेंशन शुरू कर दी. Starting was done by, introduction was done by Rohit Yadav, right? रोहित ने जो टिंकरिंग लैब्स एंड ऑल दैट वाला पॉइंट दिया था, दीज आर द काइंड ऑफ रिफॉर्म्स. लेकिन रोहित ऑब्वियसली आपका एक फ्लुएंसी नहीं आता है और आपकी इंट्रो बहुत अच्छी नहीं थी, बिकॉज जब एजुकेशन आ जाए ना, मैंने तुम्हें बहुत बार बोला है, एजुकेशन के लिए कोई कोड याद कर लो, सिंपल सी कोड याद कर सकते हो, ठीक है, यही याद कर लो. एजुकेशन इज इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर इंडियन कम्युनिटी, इतना ही याद कर लो, चाहे कि मतलब कोई भी टॉपिक एजुकेशन से रिलेटेड आ जाए, एक जनरिक कोट मैंने बोलनी ही बोलनी है, ठीक है. और रिफॉर्म्स होते आ रहे हैं, ये है जैसे आप बोलते हो कि अभी करंटली एनईपी के बारे में मेंशन करना बहुत जरूरी था, जो पार्ट ने किया, जो आप लोग मेंशन कर, जैसे दीपेंद्र ने बोला एजुकेशन अकेला नहीं बल्कि और भी चीजें आती हैं. दैट इज अबाउट होलिस्टिक डेवलपमेंट. वर्ड नहीं सही था, अकेला ये नहीं एजुकेशन एक्सक्लूड करना है हमें. इट इज अबाउट द एंटायर करिकुलम फ्रॉम हिज टिप टू टो. दैट इज अबाउट हिज माइंड, अबाउट हिज फिजिकल, अबाउट हिज इमोशनल, एवरी वेलबींग इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये चीजें आपको डिस्कस करनी चाहिए थी. अब स्टार्टिंग हुई रोहित की. रोहित दो नॉट very good, but still focusing on modernization, Atal Tinkering Labs, both the things were very good in your introduction. रोहित के उसके बाद I think only name is रोहित, उनका आ गया, that was about current reforms, funding, special focus on primary education. मतलब it is fine, लेकिन आपका कंटेंट थोड़ा elaborated था, ठीक है. तो एक में ही ज्यादा कंटेंट दे दिया, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा कंटेंट, कोई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे कोई नहीं मिला. मैंने सारी चीजें नोट की हैं आपकी, पर एक होता है ना हाईलाइट पॉइंट ऑफ योर दैट स्पीकिंग, वो नहीं था आपके पॉइंट में. थर्ड पार्टिसिपेशन हुई, फिर रोहित की दोबारा हुई. रोहित एक तो 1 2 1 नहीं बोला, मैंने बोला 1 2 3 एंड देन 1. एटलीस्ट 2 लोगों को तो पार्टिसिपेट करने दो और फिर पार्टिसिपेशन करो. गलती मत करा करो इतनी जल्दी. एटलीस्ट 2 people, let the 2 people participate. It was about government and stipend, MTech. Every MTech person is not getting the stipend. ये पॉइंट गलत था. It is about जो scholarship test मिलता है. You can simply say it out. If you really work hard on the basis of scholarship, we do get certain enhancements, certain promotional things from the government also. आपकी लाइन थी जो भी पर्सन एमटेक कर रहा है उसको स्कॉलरशिप मिल रही है. गलत है पॉइंट. कहाँ पढ़ने मिल रही है? हर एमटेक को नहीं मिलती, हर पीएचडी को नहीं मिलती. तो ये पॉइंट को ध्यान से बोला करो जो भी कंटेंट बोलते हो. कंटेंट गलत था ये वाला. दो इनिशिएटिव अच्छा था, मतलब मैं समझ गई, पर आपका कंटेंट गलत था, ठीक है. और बहुत माइन्यूटली सोचा करो, क्योंकि एक एक पर्सन आपका एक एक ऑब्जर्वेशन करता है. कंटेंट गलत बाहर हो, ओके. फोर्थ आ गया दीपेंद्र का. फिर दीपेंद्र ने जैसे स्टार्ट किया, गवर्नमेंट हैज नॉट हैज ओन टू फोकस ऑन प्राइमरी बट हैज टू कंप्लीट डेवलपमेंट. फ्यू करिकुलम के बारे में, करिकुलम एज अ होल आपको एनहांसमेंट की बात करनी थी दीपेंद्र. इट इज अबाउट द होलिस्टिक डेवलपमेंट, इट इज अबाउट द इमोशनल वेलबींग, इट इज अबाउट स्ट्रेचिंग द करिकुलम. जैसे आजकल एनईपी तो पहले ही हो चुका है, आप लोगों ने पहले देखा है. जैसे अब प्रैक्टिकल एक्सपोजर ज्यादा है, एग्जाम्स पे वो कम फोकस करते हैं. वो जैसे एक पॉइंट आया था, आई डोंट रिमेम्बर किसने वो पॉइंट दिया था, कि अप टू 5 एक्टिविटी, रोहित यादव ने दिया था, एक्टिविटी से टीच करना चाहिए. वो पहले ही कर रहे हैं. अब तो बाय 2030 जो ये है, ये इम्प्लीमेंटेशन हर जगह पे हो जाएगी. तो पॉइंट पहले सोचा करो, जो चीज पास हो चुकी है अगर उसके बारे में बोल दोगे ना, तो ये हो जाएगा कि आप लोग को पता ही नहीं है कि कौन से रिफॉर्म्स चल रहे हैं और कौन से नहीं चल रहे हैं. ये मत करो गड़बड़, ठीक है. उसके बाद फिर से पार्थ का पॉइंट था
लैंग्वेज बैरियर का पॉइंट आई थिंक पार्ट ने दिया था, दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज ये रिफॉर्म के अकॉर्डिंग अब जो है आप अपनी लोकल लेवल में भी, जैसे दीपेंद्र ने आगे से गलत बोल दिया, लैंग्वेज बैरियर नहीं है, लैंग्वेज बैरियर है। बहुत पीएसयूज में कभी इंटरव्यू में चल जाओ, अभी भी कर लो, बहुत लोगों को दे आर नॉट वेरी कंफर्टेबल इन इंग्लिश, एंड इंग्लिश इज द ब्रिटिश लैंग्वेज, वी आर फॉलोइंग द ब्रिटिश नॉर्म्स राइट नाउ, एंड दिस इज समथिंग दैट इज द रीजन वी आर फॉरगेटिंग अवर रूट्स, हम अपनी लोकल लैंग्वेज हम उसको फॉरगेट कर रहे हैं। तभी अब तो स्कीम्स दिखनी है, चाहे आप अपनी इंजीनियरिंग को हिंदी में पढ़ो, मोस्ट वेलकम, लेकिन अभी तक क्या था, इंजीनियरिंग इंग्लिश में ही पढ़नी जरूरी है, इसमें भी एक जीडी आता है, ये भी जीडी होगा, दैट शुड इंजीनियरिंग बी ऑफ डन इन द इंग्लिश ओनली, और इट विल बी हिंदी में हो जानी चाहिए, जैसे गवर्नमेंट ने पास कर दिया अब रूल कि आप कर सकते हो अपनी रीजनल लैंग्वेज में, पर कितना वो सक्सेसफुल होगा वो नहीं अभी हम बात कर रहे हैं, बट लैंग्वेज इज अ वेरी बिग बैरियर, और एनईपी इज ट्राइंग टू सॉल्व इट आउट। तो ये मत करो, गलत कंटेंट देके नहीं अपने कुछ भी वो खराब करोगे। देन रोहित यादव ने फिर से काउंटर किया दीपेंद्र को, यस इट इज अ बैरियर, तो वो पॉइंट इन दोनों के लिए अच्छा था, बिकॉज दे बोथ वर ऑन द राइट ट्रैक एंड दीपेंद्र वाज रॉन्ग। एनी सर्च दैट इज डन इन इंग्लिश, ऑब्वियसली इट हैज टू बी डन इन इंग्लिश, एंड राइट नाउ द रिफॉर्म्स आर कमिंग दैट इज वेलकमिंग द लोकल लैंग्वेजेस, ताकि हम अपनी लोकल लैंग्वेजेस को मत भूलें, वो पॉइंट गलत था आपका। दीपेंद्र का आया इन प्राइमरी देयर इज अ बैरियर, प्राइमरी में बैरियर नहीं है, प्राइमरी में तो फिर आप लोकल में लर्न करते हो, धीरे धीरे जाके आफ्टर फिफ्थ इफ यू आर नॉट वेरी कंफर्टेबल इन इंग्लिश, पीपल मेक फन ऑफ यू, राइट, दैट इज अ रियलिटी, कोर रियलिटी ऑफ आवर सोसाइटी। और ये आप डिस्कस कर सकते थे कि हमारी सोसाइटी में, हमारे स्कूल्स में, समवन हु इज कमिंग फ्रॉम अ कॉन्वेंट स्कूल इज कंसीडर्ड एज अ वेरी सुप्रीम वन, इज कंसीडर्ड एज अ गुड वन, बट हु इज कमिंग फ्रॉम अ गवर्नमेंट स्कूल, ही विल बी कंसीडर्ड कि उसको बोलना नहीं आता। और अब जो एजुकेशन रिफॉर्म है वो इसको प्रैक्टिस कर रही है, उसको ऑनर कर रही है कि ऑल द लैंग्वेजेस शुड बी कंसीडर इक्वल, इट इज जस्ट अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन। और तुम सभी को तो ये सबको बिल्कुल प्रमोट करना चाहिए दैट लैंग्वेज इज जस्ट अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, it is not about English, Hindi, Gujarati, Marathi, any other language. That showcases your diversity. And in PSU, there is going to be diversity. I tell you one thing, if you are selected on a PSU or you are on chances of selection, in many cases, it is being asked, a question पूछा जाता है, how comfortable are you in relocation? Is food or language going to be a barrier for you? Which is very important question. And the way you answer it out is more important. उसमें आपको बोलना पड़ता है कि मैम आई थिंक दैट लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर, इट्स अ मीन ऑफ कम्युनिकेशन, एंड आई थिंक दैट गूगल ट्रांसलेटर्स इज अनदर ऑप्शन, एंड वी कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर्स जार्गन्स। जो अगर आप बहुत नियर हो तो आप बहुत लोगों से पूछना जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, उनसे भी ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं ये चीज पूछी गई है, आपको बैरियर प्रॉब्लम तो नहीं है, जोग्राफिकल लोकेशंस में प्रॉब्लम तो नहीं है, दैट इज वन थिंग एंड यू शुड बी रिस्पेक्टिंग इट आउट। देन इट इज अबाउट पार्ट इंजीनियरिंग इंटर्नशिप ऑफर्ड, वो गलत है, वो अकेला इंटर्नशिप ऑफर, वो क्या पॉइंट था पार्थ? मैम जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं वहाँ के स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप वगैरह नहीं मिल पाती। दैट इज नॉट अ रिफॉर्म, अब तो आप इसमें बल्कि बात करते क्रेडिट्स की। अब इंजीनियरिंग 4 साल की डिग्री की जगह 1 ईयर में आपको, आप 1 ईयर के बाद छोड़ते हो डिप्लोमा की मिलती है, 2 ईयर्स पे आपको कुछ और क्रेडिट्स कोर्स है, 3 ईयर में ग्रेजुएट की डिग्री है, 4th ईयर में कंप्लीट कोर्स की डिग्री है, मतलब अब तो आपको वोकेशनल बहुत ज्यादा वेलकम हो रहा है, ये एनईपी आ जाता है एक तरह का। ये क्रेडिट स्कोर तो आपने अभी भी कोई भी आईआईटी में चल रहा है, अभी जो जूनियर्स आई थिंक आपके वर्क कर रहे हैं उनसे पूछो क्रेडिट स्कोर्स के बारे में, उनको भी पता होगा, यही आपको बताना है एजुकेशन सिस्टम में कि रिफॉर्म्स चल क्या रहे हैं और क्या और होने चाहिए, कि आपको ट्रांसपेरेंसी, आपको क्लियरेंस होनी चाहिए। बहुत बच्चों को क्लियरेंस ही नहीं है कि क्रेडिट स्कोर्स होते क्या है, दे आर नॉट श्योर अबाउट इट। देन रोहित यादव के पॉइंट्स वाई आई थिंक एंड पटेल, दैट वाज वेरी गुड पॉइंट। ऑनलाइन आप लोगों ने बोला, ब्लेंडिंग की बात नहीं की किसी ने, अभी हाइब्रिड मॉडल चल रहा है टीचिंग का, कोविड से हम एक नई चीज सीखी है, और ये रिफॉर्म्स मोस्ट वेलकम है, क्योंकि आगे भी इनकेस बच्चों को प्रॉब्लम है, कोई भी बैरियर आता है, आज भी कोई बारिश आती है, गर्मियों का मौसम आता है, ऑनलाइन एजुकेशन हैज बिकम वेरी वेरी कंफर्टेबल फॉर ईच वन ऑफ अस, एंड दैट इज आफ्टर द कोविड बूम, कोविड के बाद ये चीजें अच्छी हुई है। तो हमें अब एजुकेशन को एस्केप करना, मतलब रिफॉर्म आई है एक एजुकेशन सिस्टम में, वो भी बात नहीं की किसी ने। उसके बाद आई थिंक दीपेंद्र का एक पॉइंट था, नॉट ओनली एजुकेशन बट ऑल डेवलपमेंट, वो गलत पॉइंट था। पार्ट का प्रॉब्लम इज विद स्कूल चिल्ड्रन, ये रोहित यादव का फंड रेज बाय गवर्नमेंट, जो लास्ट पॉइंट है, गवर्नमेंट ऑलरेडी फंड रेज कर रही है, गवर्नमेंट ऑलरेडी बहुत पैसा लगाती है। हाँ ये कर सकते हो ऑन द इम्प्रूविंग कंडीशन, जैसे स्कूल्स में मिड डे मील स्कीम होती है और भी चीजें होती है, उसको इम्प्रोवाइज कैसे कर सकते हैं, रिफॉर्म्स ये चाहिए। बहुत ज्यादा हमने मिड डे मील स्कीम्स के बारे में नेगेटिव सुना है, खाना अच्छा नहीं होता, ये नहीं होती, प्रॉब्लम होती है, वो रिफॉर्म्स चाहिए बच्चों के लिए। और भी कुछ स्कॉलरशिप्स गर्ल्स के लिए, जैसे एंडिंग बहुत अच्छी थी पार्ट की एंडिंग बहुत अच्छी थी, ही हैज लर्नड इट आउट, तो दैट वाज अ गुड वन। दो हम गलतियां देखो, एवरीवन इज मेकिंग मिस्टेक्स, बट एटलीस्ट आप अपने पुराने से बेटर हो रहे हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। जैसे रोहित यादव का पुराने परफॉर्मेंस से बेटर हो रहा है, पार्थ का पिछली परफॉर्मेंस से बेटर हो रहा है, दैट इज अ ट्रैक, यू हैव टू फॉलो इट आउट।
देन रोहित का हेल्थ इंश्योरेंस, दैट वाज अबाउट रोहित। एक तो आपकी पार्टिसिपेशन कम है, और जब आप पार्टिसिपेट करते हो रोहित तो आप इतना लंबा कंटेंट देते हो, उससे क्या होता है, आपका वो होता है, फिजिबिलिटी नहीं बढ़ती है। ठीक है, छोटे छोटे पार्टिसिपेशन करो और छोटे छोटे कंटेंट दो, वो ज्यादा बेटर होगा आपका, वो ट्राई करो कल। ओके, उसके बाद वी हैव टू फिगर आउट द प्रॉब्लम, एंड देन रोहित यादव लास्ट पॉइंट गलत था कि आपको इंटरेस्ट करना चाहिए। मोस्ट स्टूडेंट्स लूज देयर इंटरेस्ट इन टीचिंग, चैप्टर क्लास 5 तक एक्टिविटी से टीच करना चाहिए, विच इज ऑलरेडी वेरी प्रोमिनेंट। ठीक है, तो ये चीजें हैं। पार्थ गुड परफॉर्मेंस, रोहित गुड परफॉर्मेंस, रोहित यादव। रोहित अपने कंटेंट को शॉर्ट करो, पार्टिसिपेशन थोड़ी इंक्रीज करो, 2 बार पार्टिसिपेशन हुई और दोनों बार लंबा कंटेंट हुआ है। Dipendra, work on your content, entire content was wrong. Reena, Shilpa, Shivam, start being regular, start practicing, otherwise at the very end stage बहुत टफ हो जाएगा प्रैक्टिस करना। That's not going to be good for you guys. आपको एंटर करना नहीं आएगा, आपको टॉपिक को संभालना नहीं आएगा, कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, अनम्यूट योरसेल्फ रीना, यू आर नॉट ऑडिबल। मैम जैसे मेरा कोई पॉइंट है तो मैं वो बोलना चाह रही थी, तो अगर कोई ऑलरेडी बोल रहा हो और मैं भी बोल रही हूँ तो फिर क्या मुझे कंटिन्यू रखना चाहिए या आप मैं बोल रुक रहे थे पर दूँ? आपका माइक म्यूट था, पहली चीज। वी कुड नॉट हियर एनी वन पर्सन कुड नॉट हैव हर्ड योर वॉइस, आस्क एनीवन। किसी को रीना की वॉइस आई थी? नहीं आई थी, ओके। right? And I noticed it out. I wanted to point it out, but you were very late, near to the end, so I did not point it out. And then you stopped speaking again, right? तो एक बारी बोलने की कोशिश करो। सेकंड इज डू टारगेट इट आउट। जैसे कोई बोल रहा है, जैसे कोई खत्म करने वाला है, आप उसके पॉइंट के साथ लिंक करने की कोशिश करो। जैसे सब बोल रहे थे, जैसे इन्होंने आपस में शुरू कर दिया था कि लैंग्वेज बैरियर है या नहीं है, तो यू कुड इवन गिव योर पॉइंट। आई थिंक दैट यस, इट इज अ बैरियर फ्रॉम माय साइड। यस, आई वांट टू एवरीवन टू हियर अ कोट एन एग्जांपल, आई वांट एवरीवन टू लिसन टू माय एग्जांपल। करो ऐसे बात, क्यों नहीं होगी पार्टिसिपेशन? But at least try it out. And many topics are there which we already covered it out, Reena. जैसे एजुकेशन अब ऑन डिमांड है कि हाँ दोबारा कंप्लीट करना है। बहुत आप लोग मिस कर रहे हो पॉइंटर्स, टॉपिक्स, प्लीज उसको प्रैक्टिस करो, इट्स गोइंग टू बी बेनिफिटिंग यू आउट, राइट? उसको रेगुलर हो जाओ। और अब इस चीज में किसी को प्रॉब्लम है इस टॉपिक में? एनीवन, एनी प्रॉब्लम इन द टॉपिक? मैम बट कम्युनिकेशन बैरियर की बात है, लेकिन ये भी तो बोल सकते हैं ना कि जो जितने भी फॉरेन कंट्रीज में रिसर्च वगैरह हो रहे हैं, हमारे पास नॉलेज ज्यादा तो इंग्लिश मीडियम में ज्यादा है, तो अगर अपन लोकल लैंग्वेज में उसको लेके चले तो अपने पास नॉलेज तो कम ही हो जाएगी ना। जैसे कि मैं अगर दैट इज अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक कि लैंग्वेज को हमारी इंडिया में आ रहा था। नाउ एवरीवन think about it, why we are learning English to converse with foreign languages, foreign people, though I would be wrong if I speak against English, that is my profession, but it is about ki why we are learning English, why not they are learning Hindi and they are communicating, why not we hire translators and all that. That is another level of topic. It is about, in our country, you might have heard about the many politicians, they try to give their speech in Hindi only, right? Why? Because that's a national language and we are forgetting the national language. आप लोगों में बहुत ज्यादा, even I am there, we are not very comfortable in writing Hindi, are we? We are writing very comfortable in writing English. We remember A to Z of the alphabets. We don't remember अ से लेकर एन तक का था। किसी को नहीं याद होगा, बहुत ज्यादा होंगे। That there will be very less of the people in India only that they will be remembering अ के एंड क्या आता है। याद है किसी को यहाँ पे? yes. Yeah, क्या होता है? yeah. यह सारे याद है? So that is something which is not, if I say it out, I'm not. That is the feasibility. वो अलग टॉपिक है दीपेंद्र। जो मैं लास्ट मैंने क्वेश्चन बोला ना, शुड इंग्लिश इंजीनियरिंग बी टॉट इन इंग्लिश और इट शुड बी कैरिड इन हिंदी? आगे प्रोफेशंस में प्रॉब्लम आएगी, ये आएगा, ये टॉपिक अलग है। लेकिन उन्होंने कंपल्सरी नहीं किया है। जैसे बहुत लोग आते हैं, आई टेल यू, इन पीएसयू इंटरव्यूज में भी आता है, दे आर नॉट एबल टू स्पीक इन इंग्लिश। वो अपने एचआर में इंग्लिश बोल ही नहीं पाता, एंड वी से देम आउट। पीएसयू दोनों लैंग्वेजेस को वेलकम कर रहा है, इंग्लिश में भी और हिंदी में। और वहां पे सपोज आपको कोई सुन रहा है और वो हिंदी को सपोर्ट कर रहा है, तो भाई वहीं पे आप खत्म। समझ गए? आप वहां पे इंग्लिश को प्रमोट, हमें एज अ बैरियर प्रमोट नहीं करना है। हमें ये करना है कि एजुकेशन है समथिंग जिसमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए हर लैंग्वेज को, किसी को डिमीन नहीं करना चाहिए और किसी के बेसिस पे जज नहीं करना चाहिए। ऐसे तो हम बहुत सारी लैंग्वेज वी कैन नॉट लर्न इट आउट। आजकल बच्चों को सिखाई जाती है चाइनीज, स्पेनिश इन द स्कूल्स ओनली, फ्रेंच सिखाई जाती है। French was in a domination, then English come, and now again the other languages are coming in domination, right? That is about another topic. English में NEP पढ़ के आओ, अपना NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी अगर एजुकेशन का टॉपिक आता है उसमें डालो। पार्थ का पॉइंट इसलिए अच्छा था क्योंकि उसने NEP को मेंशन किया, ही वाज रेड इट आउट। क्रेडिट स्कोर्स के बारे में पढ़ के आओ, क्यों नहीं पढ़ के आते? मुझे ये नहीं समझ आता। तुम्हें जब एजुकेशन टॉपिक दे दिया, इसके सिवाय तुम्हारा बचा क्या? हाइब्रिड मॉडल की बात करो, होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करो, ये सारे पॉइंटर्स आ जाते हैं। 4 पॉइंट भी याद कर लोगे, टॉपिक खत्म है। इसमें जितना डाल सकते हो।
गुरुकुल्स, लास्ट टॉपिक हमने किया था चेंजिंग लैंडस्केप्स इन एजुकेशन सिस्टम। चेंजिंग लैंडस्केप्स था, कहाँ हमने गुरुकुल से स्टार्ट किया था, कहाँ हम अब कैसे इंटरेक्शन कर रहे हैं, ऑनलाइन मोड पे आ गए, हाइब्रिड मोड पे आ गए। और स्टार्टिंग कहाँ हुई थी, 4 walls, नॉट इट वाज नॉट अ 4 wall बट ओपन स्पेस इन गुरुकुल्स, देन अ कंप्लीट टीचिंग रूम, एंड देन अगेन ऑनलाइन मोड, एंड नाउ इट इज अगेन अ हाइब्रिड मोड। फिर इसमें पॉलिसीज याद कर लो, 1968 हम सबने 10+2 पॉलिसी की है, सबने +2 पॉलिसीज की है ना, 10+2 सिस्टम की है। अब क्या सिस्टम आ रहा है, 5+3+3+4, ये सिस्टम चेंज हो गया, ये एनईपी लाया है, ये पढ़ो उसके बारे में, राइट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अब जो है पेपर होंगे, स्कीम्स होंगी, अब लोकल लैंग्वेजेस प्रमोट है। अब इंजीनियरिंग के साथ साथ आप क्या कर सकते हो, फिजिक्स के साथ हिंदी पढ़ सकते हो अपने इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स में। ये चीजें हैं, ये इम्प्लीमेंटेशन कब तक होगी, 2030 तक होगी। इस पे अलग क्वेश्चन आता है कि आपको लगता है 2030 तक सारे स्कूल्स में इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी, हाँ या ना, ये अलग टॉपिक है। शुड इंजीनियरिंग बी ऑफ 3 years, 4 years, या उसको 5 years इंक्रीज करना चाहिए, क्योंकि बहुत डिग्रीज आपने देखा होगा वो 4 years हो रही है, कई 3 years हो रही है। ठीक है, अभी पहले आई टेल यू ह्यूमैनिटीज में ह्यूमैनिटीज का गेट एग्जाम नहीं होता था, अब होता है, ये भी एक पेपर में आता है टॉपिक। तो ये सारे एजुकेशन बेसिस है, एजुकेशन के टॉपिक को प्रिपेयर करना शुरू करो अच्छे से, और बहुत ज्यादा एजुकेशन पे प्रोवर्बियल पे पूछा जाता है टॉपिक, बिकॉज दैट इज समथिंग इन डिमांड। जैसे एआई अभी बून पे चल रहा है, एजुकेशन बून पे चल रहा है टॉपिक। ठीक है, इसको कंप्लीटली प्रैक्टिस करो, और किसी को प्रॉब्लम एनईपी पढ़ के आना प्लीज। दोबारा कल एजुकेशन का ही लेंगे, पर एजुकेशन का मैं थोड़ा डिफरेंट लेने वाली हूँ, 1-2 दिन एजुकेशन के टॉपिक्स चलाते हैं। ठीक है, क्लियर गाइस, चलो ऑल द Yes. बेस्ट। या शिवम, Yeah, ma'am. Jesse, I mean, I have to enter in GD. What should be the best timing? Like Rohit sometime given a wrong point, like MTech student getting stipend. At that time, we can enter like saying that I am disagree with your point, but my point like that. या दैट्स अ गुड वे, बिकॉज दैट शोकेसेस यू आर अटेंटिव इनफ। आप अटेंटिव उसकी पॉइंट को जज करने के लिए, क्योंकि आप लोग को हरी होती है जो मैंने पॉइंट लिखा है मैं वो बोल दूं। इट इज बेटर यू नीड यू मेक अ लिंकेज, you are try to be attentive, and that is the best participation you could make it out. Try to ask others questions also, questions पूछ के, proverb देके, idioms देके, कुछ ऐसी पार्टिसिपेशन करो which is very important। कुछ ना कुछ लंबा सेंटेंस नहीं, जार्गन डालो, जो इंपॉर्टेंट जार्गन्स है, जो इंपॉर्टेंट पॉलिसीज Yes, हैं, ma'am. आप उसी पे I got one more point, ma'am. Like he told about girls' education, higher education, but currently girls' education is going on a upper level. Many It's not girls going on is upper studying level in in all the states. It is something. not about all the states. It is about in some parts of the country. Yes, it is Yeah, ma'am. promoting. But हमें हमेशा ये जो वुमेन एम्पावरमेंट है, ये चीजें इनको बूंद पे ही लेकर जाना चाहिए कि या वी आर मेकिंग, जैसे पार्थ ने एंडिंग अच्छी की थी कि और चीजें, जैसे अब आप गवर्नमेंट में चले जाओ, फैसिलिटीज भी ज्यादा वुमेन को मिलती है। इन पंजाब स्कूल्स आई वुड से दे आर प्रोवाइडिंग साइकिल्स टू द गर्ल्स, उनकी एजुकेशन Yes, कंप्लीट ma'am. In फ्री है। Bihar also they are giving. या तो दैट इज दे आर ट्राइंग टू प्रमोट। अभी भी पर बहुत एरियाज है जहाँ पे ये चीजें एक्सेप्टेबल नहीं है, तो दैट इज ऑल्सो वन की ना। अभी Yes, ma'am. एक्सेप्टेंस होना ही सेपरेट, हमारी फैमिलीज में एक्सेप्टेंस है, बट डजंट मीन एवरी फैमिली इज एक्सेप्टिंग इट आउट। अभी भी ऑनर किलिंग बहुत जगह पे प्रैक्टिस है, विमेन की रेशियो आज भी कम है, सेक्स रेशियो में विमेन कम ही जाएगी, तो उस पे एक अलग से शुरू हो जाएगा टॉपिक। मतलब आप लोग का कंट्रोवर्शियल पॉइंट आपको कट बहुत जल्दी कोई पर्सन कर सकता है, इसलिए हमेशा ऐसे पॉइंटर्स करा करो जीडी में जिसमें आप कट कम हो सको, क्योंकि वहां पे आपको अगर कट कर दिया किसी ने तो यू वोंट बी एबल टू हैंडल योरसेल्फ। गो फॉर वेरी इजी पॉइंटर्स। ठीक है, I'm पर like पार्टिसिपेट I करो। have to give short point and interrupt many times. Like नॉट मेनी टाइम्स यू हैव टू इंटरप्ट इट आउट, यू हैव टू मेक योर स्पेस। जैसे 1-2 बार कर सकते हो, किसी के बीच में कट करोगे बार बार वो गलत हो जाएगा, आपका नेगेटिव काउंट होता है। पर एटलीस्ट okay, एंटर तो करो। आई कैन नॉट जज यू ऑन द बेसिस लाइक बिफोर यू इवन एंटर इट आउट। ठीक है, तो okay. पार्टिसिपेट करना शुरू करो, और पार्टिसिपेशन के बेसिस पे देखो। जैसे मुझसे रोहित यादव बहुत अच्छा कर रहा है, चाहे गलत पॉइंट दे रहा है, एटलीस्ट ही इज पार्टिसिपेटिंग, एटलीस्ट ही गेव गुड पॉइंट्स। टिंकरिंग लैब्स का किसी ने कंटेंट नहीं दिया, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन, पता नहीं क्यों नहीं दिया। बहुत चीजें थी जो अच्छी अच्छी आप मेंशन कर सकते थे। ठीक है, लाइब्रेरीज का, ई बुक्स का मेंशन कर सकते थे, आजकल ईएसएस है। आईआईटीज में चल रहा, कौन कौन यहाँ पे, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स यू माइट बी फ्रॉम आईआईटीज आल्सो। आप लोग को Yes, पता ma'am. लाइब्रेरीज में क्या रिफॉर्म्स चल रही है, लाइब्रेरीज में कैसे हमारे वो चलता आ रहा है, नो वन डिस्कस्ड इट आउट, आई डोंट नो व्हाई। नॉर्मल लाइब्रेरी कंपेयर कर लो, आईआईटी की लाइब्रेरी कंपेयर कर लो, ह्यूज डिफरेंस है वहीं पे, Yes, ma'am. वो भी डिस्कस नहीं करते हो तुम लोग। एजुकेशन रिफॉर्म्स में ही आता है, कहाँ पे ऑनलाइन तुम सबमिशन कर रहे हो, ऑनलाइन तुम ले रहे हो, ई बुक्स को क्रेडिट कर रहे हो, किंडल आ गया तुम्हारे पास, रिफॉर्म्स ही तो है ये सारी चीजें। और जब पॉइंट बोलना लगता है सारे गलत पॉइंट्स, आई डोंट नो व्हाई। सीरियस नहीं हो या तो आई जेन्युइनली टेल यू वन थिंग, व्हाट आई प्लान टुडे वाज, इफ यू गाइस आर नॉट पार्टिसिपेटिंग आई कीप एन अल्टरनेटिव डेज फॉर जीडी। इफ यू गाइस आर नॉट सीरियस फॉर योर जीडी, व्हाई आई शुड टेक द हेडेक फॉर दैट? वेरी सिंपल इन दैट केस।
तुम लोग पढ़ के नहीं आते हो, उसके बाद जीडी में मैं तुम्हारी जीडी अगर करवा भी दूंगी वो मजा ही नहीं आता। आई एम द वन गिविंग द पॉइंटर्स लेटर ऑन। द बेस्ट जीडीज, आप देखो पुरानी जीडीज, द स्टूडेंट्स यूज्ड टू डू पॉइंटर्स, पढ़ के आते थे भाई। आई डोंट थिंक सो आपकी शायद इंटरव्यू डेट्स नहीं आई है अभी, नहीं आई है ना, तभी बड़े ईज पे हो। और जैसे ही आएगी ना आई टेल यू, तब जीडी में तुम्हें 3-3 जीडी भी दिन में लग रहे होंगे ना, तो तुम्हें हैंडल नहीं हो रहा। तब हो रहा है कि मेरे को हर जगह में स्पेस मिल जाए। आई आस्क फ्रॉम प्रीवियस स्टूडेंट्स, एक दिन में 3 जीडीज चलेंगे, 4 जीडीज चलेंगे, और तब बच्चे इतने रश में होता है ना, उनको स्पेस नहीं मिलती है जीडीज में, एंड देन दे ट्राई टू रिग्रेट इट आउट कि पहले क्यों नहीं लगाया। वेरी लकी इन दैट आपको बहुत प्रैक्टिस मिल जाएगी जीडी की एट टिल द फाइनल्स। पर अगर तुम सीरियस होगे तो एंड पे लगाओगे ना, तो जीडी में पुरानी रेशो देखना, आईओसीएल में देख लेना, एचपीसीएल में देख लेना, ये दोनों तो मुझे अच्छे से याद है। एक एक दो दो बच्चा सेलेक्ट हुआ है कंप्लीट जीडी में, पूरी पूरी टीम्स बाहर हुई है। कोई हाइपर एक्टिव हो जाता है, कोई लो एक्टिव हो जाता है, कोई कंटेंट गलत देता है, और कई बार होता है कि जैसे सीटी एक बच्चे को सिलेक्ट करनी है उन्होंने, तो वो देखते हैं बेस्ट ऑफ पॉइंट, जार्गन कौन अच्छा देता है, मतलब रिलेटेड टू टेक्निकल स्टफ कौन बोल रहा है। टेक्निकल से लिंक करके कोई बोलता ही नहीं तुम लोगों में से, गाइज आर टेक्नोक्रेट्स, और तुम में टेक्नोलॉजी का टी नहीं है इस टाइम पे। भाई पढ़ लो, otherwise I'm very serious, I'm telling you out, I keep GDs on alternative days, I'm not going to take it every day, you guys are not even a percent serious। और एजुकेशन टॉपिक दोबारा शुरू हुआ है, पहले हो चुके हैं एजुकेशन के टॉपिक्स। अब मैं प्रोवर्बियल भी दोबारा करा दूंगी, मुझे नहीं लगता तुम लोग को याद होगा, और जिन्होंने कभी लगाया ही नहीं उनको याद ही नहीं होगा कि प्रोवर्बियल टॉपिक्स में क्या क्या किया है। रीना पढ़े थे पुराने जीडीज? अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम, थोड़े से पढ़े थे। थोड़े से पढ़े थे जिसका मतलब नहीं पढ़े थे, ये सच्चाई होती है। So that is, see, this is for your benefit. If you can handle it out, please go for the GDs every day. If you can't, you are making a space for yourself. आप आधा घंटा, I think आज लंबा हो गया, हार्डली 35-40 मिनट लगते हैं भाई तुम लोग के, उसमें भी तुम्हें दिक्कत है लगाने की। क्या दिक्कत है तुम्हें? मुझे यहां तक हो, इंटेलिजेंट हो, मेक योर स्पेस इन द जीडीज, हिट इट आउट, यू डोंट हैव टू बी एट द टॉप लेवल, जस्ट क्वालिफाई इट आउट विद पीस। सीक्वेंस बनी हो, तुम्हें याद हो। ये रोहित को सीक्वेंस की लाइन ही नहीं याद आ रही थी, हाउ टू ओपन द स्पेस, आई एम गोइंग टू ओपन द हाउस, लाइन ही नहीं बन रही है। क्या लाइन बोली थी रोहित लास्ट पे? नहीं पता ना, उल्टी लाइन है। पार्थ रे थैंक यू, मैंने बोला एब्रप्ट एंडिंग नहीं करनी है, थैंक यू तक नहीं बोला जाता तुम लोगों से। रेगुलर प्रैक्टिस की हो, एंड पुराने बच्चों की जीडीज देखना, दे आर वेरी रेगुलर। मैम मैं खुद वो करना चाहता, इंट्रो में खुद कंक्लूजन, एक दिन वो एचआर करते हैं, एक दिन वो कंक्लूजन करते हैं, सॉरी दैट इंट्रो एंड कंक्लूजन। तुम लोग हाथ ही नहीं खड़ा करते हो कि कौन इंट्रो और कंक्लूड करना चाहता है, वहां पे तुम क्या ही करोगे? बी सीरियस, स्टार्ट प्रिपेयरिंग, एजुकेशन पढ़ के आ जाओ भाई, ठीक है? ओके, टेक केयर, विल मीट टुमारो।